Namaste, dear all students. Now welcome back in lesson number 2 here, square and square root. Now in lecture number 1. Now see student, today we are going to start with the chapter, that is chapter number 2. This is square and square root. Now what is a definition of square? Now what is mean by square? Now square means what? The multiplication of two identical number. Now see here the multiplication of two identical number. Now suppose 2 is there. Here that 2 will get multiplied with same number. Here the result will obtain, that is 4. Now see 2 into 2, here 4, but we can write that 2 into 2 as 2 square is equal to 4. Now student, now see why that 2 into 2 can be written as 2 to the power 2. Now in 7th standard we learn one lesson. Name of that lesson is power and exponent, right? एक्सपोनेंट नाम का जो लेसन है अपन ने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, और वो लेसन में अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आपको याद होगा शायद, a to the power m into a to the power n. जब आप लिखते हो तब उसे आप रिप्रेजेंट करते हो a to the power m plus n, राइट? बट स्टूडेंट सी, और ये जो है इफ द बेस ऑफ इक्वल, अगर यहाँ पे ये दो नंबर इक्वल है तो उनके जो एक्सपोनेंट है उनकी यहाँ पे क्या होती है, एडिशन होती है. सेम तरीके से यहाँ पे है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 to the power. Now see here 2 multiply by 2 means here the 2 to the power 1, here is 2 to the power 1 is equal to, see that 1 plus 1 is equal to, see 2 to the power 1 plus 1, here we are getting 2. Now this is simple. Now again this is one example. What definition I said, if the number is, if the two identical number are multiplied, राइट? अगर दो सेम नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो गए तो जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्क्वायर. अदरवाइज आप ऐसे बोल सकते हो, इफ द नंबर इज मल्टीप्लाई इटसेल्फ, राइट? अगर दो है ये दो के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे स्क्वायर. नाउ सेकंड यहाँ पे देख लो, 6 multiplied by 6 is equal to, here we can write it as 36. Now students see, but 6 into 6 we can write as 6 square is equal to, here we are getting 36. सेम तरीके से जब आप ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हो तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 into 6, 6 की पावर कुछ भी नहीं रहती, इसका मतलब यहाँ पे 6 to the power 1 रहता है, इज इक्वल टू, हियर 6 to the power 1 plus 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको मिलता है 6 स्क्वायर. मैं आपको ये बता रहा हूँ कि why we are writing that 1 square, 2 square, 3 square and how that 2 will get appear, right? ये आपको पता रहना चाहिए. मैंने कुछ भी नहीं, अगर आपने किसी ने बोला why that 2 into 2 is 2 square, उनको डायरेक्टली बोल दो a to the power n into a to the power n, means if the base are equal then add their exponent, means a to the power m plus n होता है. बट यहाँ पे देख लो, जैसे कि यहाँ पे a है, means that 6 is here a, that 6 is here a, means 6 a to the power m plus n, but instead of that n here is 1, instead of that n here is 1, 6 to the power 1 plus 1 is equal to, here 6 square. होप सो आपको समझ में आया होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 को 2 to the power 2 मैंने क्यों लिखा, राइट? नाउ आफ्टर दैट हियर वी हैव, I already written here the square from 1 to, sorry, 1 to here 20, right? But student, while writing you can also write it down, the definition of square, the number is multiplied itself. If the number is multiplied by itself is called the product is obtained, that product is called the square of that number, right? This is the definition. For example करके आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 into 2 is equal to 4, 2 square is equal to 4, 6 into 6 is equal to 36 and 6 square is equal to 36, राइट? और आपको अगर है तो ये जो एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की आइडेंटिटी है कहीं पे भी नोट करके आप लिख लो, क्योंकि ये आइडेंटिटी उसका काम आपको आने वाला है, क्योंकि पता रहने वाला है why that 2 square is there. Now next we have to learn here, see a square from the square from 1st to 20. Now student यहाँ पे ऑब्जर्व कर लो, 1 square is equal to 1, 2 square is equal to 2. मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जो नंबर 1 का जो स्क्वायर आता है वो एंड, मींस उसका यूनिट डिजिट 1 रहता है. 2 का स्क्वायर जो है वो एंड होता है किससे, 4 से, राइट? अगेन 3 का स्क्वायर जो 8 हो रहा वो 9 से हो रहा है. अगेन देख लो 4 का स्क्वायर
जो एंड हो रहा है वो हो रहा 6 से, और 5 का स्क्वायर जो एंड हो रहा है वो किससे हो रहा है, यहाँ पे 5 से, राइट। अगेन हियर सी the square of 6 will get end here by 6. After that the 7 square will get end by here 9. After that here 8 square get ended by end by here 4, and 9 square जो 8 हो रहा है वो 1 से हो रहा है। यहाँ पे है 10 स्क्वायर, ठीक है, और 10 का स्क्वायर जो 8, नो नीड टू राइट डाउन 10 टिल 9 इट इज सफिशिएंट, राइट। बट स्टूडेंट यहाँ पे देख लो, मेरे को ऐसा ऑब्जर्व हो रहा है, अगर 1 का स्क्वायर यहाँ पे देख लो 1 है, मैं यहाँ पे 1 की जगह पे दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 11 का स्क्वायर, जो 11 का स्क्वायर है 121। मैं यहाँ पे एक चीज बोल सकता हूँ, अगर कोई भी नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो उसका स्क्वायर जो है वो 1 से, यानी कि वो स्क्वायर नंबर जो है वो स्क्वायर नंबर भी 1 से क्या होता है, एंड होता है। मैं दूसरा एक और एग्जांपल आपको दे सकता हूँ 21 स्क्वायर, 21 का स्क्वायर जो आएगा 441। देख लो यहाँ पे इन दैट नंबर 21 द यूनिट प्लेस इज हियर 1 एंड दैट स्क्वायर इज आल्सो एंड विद 1। मिस मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर आपने किसी ने पूछा कि 121 का जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर का यूनिट प्लेस मींस ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर जो आएगा यहाँ पे कोई भी नंबर आएगा वो किससे एंड होगा, तो आप उसे बोल सकते हैं वो एंड होगा 1 से, क्योंकि एक चीज याद रख लो, मींस द स्क्वायर ऑफ द नंबर व्हिच कंटेन 1 एट अ यूनिट प्लेस एंड द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, वो नंबर का जो स्क्वायर होता है और नंबर स्क्वायर जो होता है वो किससे एंड होता है, 1 से एंड होता है। सेम तरीके से मैंने आपको यहाँ पे समझने के लिए एग्जांपल दिया है, जैसे कि देख लो 2 का स्क्वायर जो है वो यहाँ पे एंड हो रहा है किससे, 4 से। मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 का स्क्वायर जो है वो किससे एंड हो रहा है, 12 का स्क्वायर कितना है यहाँ पे 144, बट यहाँ पे जो नंबर है वो कौन सा है, यहाँ पे 2 है। इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर, यानी कि जो स्क्वायर नंबर रहता है उसका यूनिट डिजिट अगर 2 रहेगा तो वो एंड किससे होगा, उसका स्क्वायर नंबर एंड किससे होगा, ये 4 से होगा। मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, 22 का जो स्क्वायर है वो आएगा यहाँ पे, 22 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 484, राइट। मींस 22 स्क्वायर इज इक्वल टू 484। यहाँ पे देख लो जो स्क्वायर नंबर है वो कौन सा है, 22, वो किससे एंड हो रहा है, 2 से, तो उसका स्क्वायर का एंडिंग वाला नंबर किससे एंड होगा, 4 से। मींस आपको एक चीज याद होनी चाहिए, अगर स्क्वायर नंबर का यूनिट प्लेस 1 होगा तो उसका जो स्क्वायर है, राइट, वो किससे एंड होगा, 1 से होगा। सेकंड चीज यहाँ पे देख लो, नेक्स्ट है 3 स्क्वायर। अब देख लो 3 स्क्वायर, सेकंड नंबर में यहाँ पे ले रहा हूँ 30 स्क्वायर हियर हाउ मेनी, हियर 169। अगर कोई यूनिट प्लेस 3 है, देख लो यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर एंड हुआ 9 से, मींस स्क्वायर नंबर कौन सा है यहाँ पे 13 है, 13 का यूनिट प्लेस क्या है, 3 है, तो उसका स्क्वायर नंबर भी किससे एंड होगा, 9 से। अगर आप यहाँ पे ले लो 23 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप ये लोगे तो यहाँ पे इसका जो स्क्वायर नंबर आएगा 23 का, now after that see 223 स्क्वायर ये जो आएगा 529 आएगा। मैं आपको सिर्फ एक ही बता रहा हूँ, यहाँ पे 3 स्क्वायर एड हो रहा है 9 से, 13 स्क्वायर एड हो रहा है 9 से, 23 स्क्वायर एड हो रहा है 9 से। अगर यूनिट प्लेस यहाँ पे 3 है तो चाहे कोई भी दुनिया का स्क्वायर है, मींस 33 का स्क्वायर ये भी किससे एड होगा, 9 से। मींस उसके बाद में 43 का जो स्क्वायर है वो भी किससे एंड होगा, मैं एंड होने की बात कर रहा हूँ, वो किससे एंड होगा, 9 से एंड होगा। ये है मिस 1 प्रॉपर्टी है। मिस यहाँ पे आपको सिंपली आपको ये समझना है, जैसे ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, आपको एक चीज बताना है, क्योंकि उसका नेक्स्ट का टॉपिक मेरे को बताना है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, उसमें से फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको लिखना है। यहाँ पे देख लो 1 का स्क्वायर एंड हो रहा है 1 से, तो ऐसा कौन सा नंबर है कि जिसका स्क्वायर और
1 से एड हो रहा है 9 से, मीन्स द स्क्वायर ऑफ 1 and 9 एंड विथ हियर 1। ठीक है, आफ्टर दैट सेकंड वन जो है 2 का स्क्वायर किससे एड हो रहा है, मीन्स देख लो द स्क्वायर ऑफ 2 एंड 2 का स्क्वायर 4 से एड हो रहा है। ऐसा कौन सा यूनिट प्लेस है, यहाँ पे 4 है लेकिन वो नंबर कौन सा है 8। 2 एंड 8 का जो स्क्वायर है वो किससे एड होगा 4 से। आफ्टर दैट द स्क्वायर ऑफ 3 एंड 3 को ऑब्जर्व कर लो, 3 का स्क्वायर 9 से एड हो रहा है और कोई नंबर है कि जिसका स्क्वायर 9 से एड हो रहा है यहाँ पे, यस वो कौन सा है 7। 3 and 7 the square end with by here 9, right? Now after that the square of 4 and देख लो 4 का स्क्वायर अगर यहाँ पे 6 से एड हो रहा है, यहाँ पे ऐसा कोई नंबर है, यस है 36। इस 4 and 6 का जो स्क्वायर है वो किससे एड होगा, यहाँ पे 6 से एड होगा। आफ्टर दैट द स्क्वायर ऑफ 5, राइट, द स्क्वायर ऑफ 5 का स्क्वायर ये जो 8 होता है ऑलवेज ये किससे होता है 5 से होता है। बट ये है प्रॉपर्टी नंबर 1, राइट, मींस यहाँ से मेरे को एक कंक्लूजन मिला है, क्या कंक्लूजन है, और उसके बाद में द स्क्वायर ऑफ 0 means if suppose there is a 0 at a unit place then the square will get, means no need to write on this, but आपको एक लिखना है यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 1। वो प्रॉपर्टी नंबर क्या है, द स्क्वायर नंबर always end with, देख लो वो कहाँ से एंड होते हैं 0 1, उसके बाद में 4, उसके बाद में 5, उसके बाद में 6 और उसके बाद में 9। देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, right, means this is the property number 1, the square number is always end with 0 1 4 5 6 9। property number 2 means if the square number end with here 2, 3, 4 is there, 5 is there, 4 is there, 5 is there, 6 is there, 7 8 after that 1 2 3 4 5 6, right, if the square number end with 2 3 7 8 then if the square of a number लिख लो, if the square of a number end with 2 3 7 8, end with means here the unit digit of the number is 2 3 7 8, then the number is never perfect स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे देख लो, आपको इतना याद रखना है जैसे कि जब 2 3 7 और 8 ये कोई भी नंबर के एंडिंग में होगा तो वो जो नंबर रहता है वो स्क्वायर नंबर कभी भी नहीं बन सकता है, क्योंकि देख लो 1 से लेके मैंने आपको पहले बताया अगर 1 और 9 यूनिट प्लेस अगर कोई नंबर करेगा तो उसका स्क्वायर नंबर जो है वो 1 से एंड होगा। 2 और 8 रहेगा तो वो नंबर किससे एंड होगा, एंड 4 से एंड होगा। 3 और 7 अगर कोई भी स्क्वायर नंबर के एंडिंग में होगा तो वो नंबर किससे एंड होगा, 9 से होगा। 4 और 6 अगर कोई नंबर एंडिंग स्क्वायर नंबर के एंडिंग के लिए रहेगा तो वो किससे एंड होगा, 6 से। 5 का स्क्वायर ऑलवेज एंड होता है 5 से। अगर इसके अलावा मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 बचा 0, 0 का स्क्वायर तो ऑफकोर्स 0 से एंड होगा। इस टोटल नंबर ऑफ 9 और 10 जो यूनिट है मींस सिंगल यूनिट से 0 से लेके 9 तक, मींस ऐसा कोई भी नंबर नहीं यूनिवर्स से कि वो 0 से लेके 9 तक की अलावा उसकी कोई एंडिंग रहती है करके, राइट। ये है प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2, अब आफ्टर दैट प्रॉपर्टी नंबर 3 इज द स्क्वायर
square of even number is even, राइट। मीन्स यहाँ पे देख लो, आप ऑब्जर्व कर लो, कोई भी इवन नंबर अगर रहेगा, इस 2 इज ए इवन नंबर, उसका स्क्वायर क्या आता है, इवन नंबर। 4 इज इवन नंबर, इसका स्क्वायर क्या आता है, इवन नंबर। 6 इज इवन नंबर, 36 इस क्या है यहाँ पे, इवन नंबर। मीन्स यूनिवर्स में कोई भी अगर इवन नंबर का कभी भी आप स्क्वायर निकालोगे, जैसे कि मान लो यहाँ पे 18 इज ए इवन नंबर, इवन दैट 324 इज एन इवन नंबर, मींस द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज क्या रहता है, इवन रहता है। उसके बाद में प्रॉपर्टी नंबर 4 इज देयर, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर इज आल्सो ऑड। अब देख लो यहाँ पे ऑड नंबर मींस द नंबर व्हिच इज नॉट डिविजिबल बाय 1 इज ऑड, द स्क्वायर ऑफ 1 इज ऑड नंबर, 3 इज ऑड, द 9 इज आल्सो हियर ऑड, 5 इज हियर ऑड, 25 इज ऑड। यहाँ पे देखो 15 एक ऑड नंबर है, 225 ये भी आपका कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है। मींस कोई भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर का आप कभी भी स्क्वायर निकालो, उसका जो मींस ऑड नंबर का जो भी स्क्वायर आएगा वो स्क्वायर ऑलवेज क्या रहता है, आपका ऑड नंबर ही रहता है। ये बनते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ 4 प्रॉपर्टीज, राइट। Now after that, see here we saw that 4 properties, right? But after that here the next property is there, property number 5. Student, I am writing that property from this side. Now here see the property number 5. Now the property number 5 is that means the square if the total number of 0 at the end of number is even, then the number is perfect square। अब देख लो ये नेसेसरी नहीं है, ये पूरे के पूरे नंबर के लिए नहीं है। अगर आप बोलोगे मैंने क्या लिखा, इफ द टोटल नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ अ नंबर इज इवन, अगर मान लो 4 के बाद में अगर मैं 2 0 लिखूंगा, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जो 0 है 4 के बाद में 2 है वो इवन है, इट मींस दैट मींस 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और वो किसका स्क्वायर है, 2 का है। मैं फिर से बोलूंगा कि यहाँ पे 100 है, 100 के एंडिंग में इवन नंबर ऑफ 0 है, राइट। अगर 100 के एंडिंग में इवन नंबर ऑफ 0 है तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 10 का स्क्वायर। अगर देख लो 100 4 टाइम्स 0, यहाँ पे मैंने 4 0 लिखे, अगर मैंने यहाँ पे 4 0 लिखे तो ये नंबर भी क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 100 का है। अब आपको यहाँ पे पता रहना चाहिए, यहाँ पे 2 0 है तो 2 को मैंने कन्वर्ट किया 1 में, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 4 0 है तो 4 0 को मैंने कन्वर्ट किया कितने 0 में, 2 0 में। प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इफ द टोटल नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ नंबर इज इवन, देन द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। वो नंबर क्या रहता है, परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन ये हर एक केस में पॉसिबल नहीं रहता। अब जैसे कि देख लो, यहाँ पे मैं 2 0 लगाऊंगा, ये 100 का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे 2 लगाऊंगा, एक 200 का बन जाएगा। यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो ये 30 का बन जाएगा। यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो ये कितने का बनेगा, 40 का। यहाँ पे 2 0 लगाऊंगा तो ये 50 का स्क्वायर बनेगा। इस अगर कोई भी नंबर के एंडिंग में 2 0 और इवन नंबर ऑफ 0 अगर रहेंगे तो वो नंबर क्या रहता है, परफेक्ट स्क्वायर रहता है। लेकिन मिस वो जो नंबर है वो 1 से लेके 10 तक के जितने भी स्क्वायर है वो रहना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 0 लगाऊंगा, ये किसका स्क्वायर है, 100 का स्क्वायर बन जाएगा, राइट। बट इट इज नॉट नेसेसरी। अगर मैं बोलूंगा कि 700 के एंडिंग में 2 0 है, क्या वो 700 परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं, इट इज टोटली रॉन्ग। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल द नंबर, बट मेनी ऑफ द टाइम इफ सपोज देयर आर इवन नंबर ऑफ 0 एट द एंड ऑफ अ नंबर, अगर वो नंबर आपको पता है, जैसे कि मैं बोलूंगा 7, इस 49 के बाद में मान लो 49 के बाद में तो इवन नंबर ऑफ 0 अगर मैंने लगाया, मेरे को पता है 49 is a square of 7, but that 2 0 will get dissolved into the 1. Now this is means 4900 is a square of 70, right? Now this is the property number. Now after that 6, see property number 6, a perfect square number leave the remainder
remainder 0, 0 or 1 when it is divisible by 3. नाउ प्रॉपर्टी क्या बता रहे हैं, अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है, अगर वो डिविजिबल होता है किससे 3 से, तो वो क्या करता है, जैसे कि मान लो अगर आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे, बट दिस प्रॉपर्टी देयर इज अ 1 इज एन exceptional, right? 1 is here exceptional case. Now consider here 4 is there. If suppose that 4 will get divided by 3, here remainder r means remainder we are getting 1, right? Now next number is there 3, when 3 sorry next square number is here 9. If that 9 will get divided by 3, here the remainder we got 0. After that see there is a 16, means if we divide that 16 by 3, now here the remainder we are getting 1. Now why I am saying that, is 16 divided by here 3, 16 sorry 5, 3 5s are here 15, see the remainder is 0. If suppose I divide this 9 by 3, here 9 3s are here 9 we are getting, the remainder is here, that remainder is here how many, the remainder is here 0, right? Means like as the meaning of that property, a perfect square number leaves remainder 0 or 1 when it is divisible by 3, but 1 is here exceptional. For 1 while dividing 1 by 3 nothing we are getting, right?